Okay, so the root module, right, or the base module, right, is app module, right? So it forms the basic say topmost level, or the parent module of your application is the app module. Now inside app module, if you can see, there is an ng module नाम का एक डायरेक्टिव है, ये @ng module जो यहाँ दिखता है, right? This ng module, it is like a function, right? And inside this what we have is a JSON, so it accepts a JSON as a parameter. Inside that JSON what we have is we have few arrays, यानी key value pair है, comma separated key value pair, right? So first key we have is declarations against which there is an array, and inside this declarations what we generally give is whatever components which are part of this module, right, they are added into this array. So every component that is there, that will always be a part of some array to use it, right? तो हम लोगों के पास में अभी एक ही component है which is app component, and to use that app component it has to be part of some array. तो ये Angular हमें ऐड करके देता है पहला जब भी एप्लीकेशन बनता है, तो ये ऐप कंपोनेंट ये डिक्लेरेशंस एरे में आ गया, मतलब ये रजिस्टर हो गया कि ओके दिस कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ दिस मॉड्यूल, राइट? दैट इज व्हाट इट मीन्स. So if we generate a new component in this app module, right, that component would be registered here, right? We'll look at that. Then there is an imports array जिसमें जो भी modules, external modules जो भी आपका application use करने वाला है उसे हम लोग imports array में डालते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने फॉर्म्स मॉड्यूल डाला, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल डाला, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल डाला, राइट? सो दे आर एडेड इनटू आवर इंपोर्ट्स एरे. प्रोवाइडर्स बूटस्ट्रैप अभी के लिए रहने दो, राइट? तो ये दो एरे इंपॉर्टेंट है, एक डिक्लेरेशंस और एक इंपोर्ट्स, राइट? अब whenever I would generate a new component, that would be added to my declarations array, right? So this is the first thing. Second thing, right, let us try to understand what a component is. As I said, component is a basic building block of Angular. It is a basic building block of Angular, right? तो component में तीन चीज़ें important है, right? एक तो होता है वो component का class. So whenever you come into this component.ts file, अभी हमारा app component है इसलिए इसका नाम app.component.ts है, तो उसमें एक class होता है, right? तो ये class is the center thing of the component, right? और ये class में से सब चीज़ें manage होती है. तो for every component, right, there is एक @component directive, ये ऐसा. Again it accepts a JSON. और इसमें तीन चीज़ें, एक सिलेक्टर है, ये सिलेक्टर क्या है बाद में देखते हैं. एक टेम्पलेट URL है, तो ये टेम्पलेट URL में आप क्या देते हो, आप देते हो कि ये कंपोनेंट का करस्पॉन्डिंग HTML कौन सा है, तो वो इट इज़ app.component.html फॉर दिस कंपोनेंट, राइट? इसमें हमने जो भी डाला app.component.html में, राइट, हमने ये देखा कि ये चीज़ हमें UI पर विजिबल होती है, तो you can say that this HTML file is a view for that component. That is what it means, right? Then next what we have is style URLs, जिसमें हम लोग CSS फाइल डालते हैं. CSS का मतलब क्या कि जो भी स्टाइलिंग आपने देना है वो आप CSS में डालते हो, कैस्केडेड स्टाइल शीट, राइट? सो स्टाइल URLs में what we provide is कि कौन सी CSS ये कंपोनेंट यूज़ करने वाला है. दैट इज़ व्हाट इट्स जॉब इज, स्टाइल URLs का, राइट? फिर कंपोनेंट जो क्लास होता है उसमें हमने देखा कि वी हैव डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, राइट? और हम लोग वो बाइंडिंग वाइंडिंग कर सकते हैं, राइट? सो दिस ऐप कंपोनेंट इज टॉप लेवल कंपोनेंट. इसका मतलब इज वेरी सिंपल दैट वॉट एवर यू टाइप इन योर app.component.html, राइट, दैट विल ऑलवेज बी विजिबल इन योर UI. क्यों? क्योंकि वो टॉप लेवल का कंपोनेंट है, इसीलिए इट विल ऑलवेज बी विजिबल इन योर UI, राइट? सो important thing is कि we have in our project we have a SRC folder which stands for source code. Inside that there is an app folder. Inside app folder there is a module which is app module, and there is a component app component, and this app component is a part of this app module. And how do you know that it is a part of this module? Because we have registered it in the declarations array. वो Angular ने हमें provide करके दिया है, right? Now what we are going to do is we are going to generate a new component, right? So to do that what I'll do is I'll go to my project folder,
एक दूसरे टर्मिनल में ng सर्व मैंने यहाँ किया हुआ है, वो चल रहा है, दैट इज फाइन, राइट। यहाँ पे आई एम इन द सेम प्रोजेक्ट, सेकेंड प्रोजेक्ट के अंदर में ही मैं हूँ, मेरा वो डायरेक्टरी वही है सेकेंड प्रोजेक्ट, एंड यहाँ पे आई वुड बी जनरेटिंग अ न्यू कंपोनेंट, राइट। सो हाउ विल आई डू दैट? आई विल से ng then generate then component and I will give some name to the component. Let's say I will give the name home and I press enter. So what is going to happen is कि एक component में तीन important चीज़ें, एक .ts फाइल जिसके अंदर क्लास होता है, एक HTML फाइल और एक CSS फाइल, राइट। तो ये तीन फाइल्स उसमें होगी। एक और फाइल होती है spec.ts, वो अभी अपने काम की नहीं है, राइट। तो तीन फाइल्स, यानी एक फोल्डर बनेगा होम नाम का, वो फोल्डर बनेगा आपके ये ऐप फोल्डर के अंदर, राइट। एंड वो होम के अंदर में देयर वुड बी थ्री इंपॉर्टेंट फाइल्स, वन इज home.component.html, home.component.css एंड home.component.ts, राइट। फिर home.component.ts जो फाइल होगी उसमें ऐसा ही एक @component नाम का डायरेक्टिव रहेगा जिसमें ये तीन चीज़ें रहेगी, एक रहेगा सिलेक्टर, एक टेम्पलेट URL और एक स्टाइल URL, राइट। लेट्स सी जनरेट होता है क्या, होने दो इसे जनरेट। ये यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज होती है, वो कोई काम की नहीं है, तुमने डिलीट भी कर दिया तो भी चलेगा। ओके, राइट। सो इफ़ यू कैन सी कि ये चार फाइल्स वो बोल रहा है कि हाँ जनरेट हुई। इफ़ वी गो हियर तो तुम ये देखोगे कि ये ऐप फोल्डर के अंदर देयर इज अ होम फोल्डर विच इज क्रिएटेड, राइट। एंड इन दिस होम वी हैव अ home.component.ts फाइल, राइट। उसमें अगेन @component है एक डायरेक्टिव, और उसमें वो ये बता रहा है क्योंकि इसका सिलेक्टर क्या है, तो सिलेक्टर इज app-home। ये सिलेक्टर क्या है अपन समझते हैं। फिर देन देर इज़ अ टेम्पलेट URL, तो वो ये बताता है कि कौन सी HTML फाइल, तो इट इज़ home.component.html एंड अ स्टाइल URL जिसमें home.component.css, राइट। फिर उसमें वो कंपोनेंट में दो मेंबर फंक्शन बने, एक कंस्ट्रक्टर बना और एक ng-on-init बना, राइट। ये कंस्ट्रक्टर वो है जिसमें तुम ये यूज़ कर सकते हो, सर्विसेज को इंजेक्ट कर सकते हो, राइट। उस पर आते हैं बाद में, राइट। तो ये कंस्ट्रक्टर बना, इसमें एक ng-on-init फंक्शन बना, ये भी क्या है बाद में समझेंगे, राइट। नाउ लेट अस लुक एट इट्स HTML फाइल। तो यहाँ पर एक सिंपल p टैग, ये बाय डिफ़ॉल्ट HTML बना के दिया है, उसमें सिंपल लिखा है होम वर्क्स, राइट। नाउ इफ़ यू लुक एट द UI, यहाँ देयर इज़ नथिंग दैट हैज़ बिन डन, कुछ भी लिख के नहीं आया, कुछ नहीं आया, होम कंपोनेंट का तो कुछ भी नहीं आया, राइट। अब अगर ये होम कंपोनेंट को अगर आपको डिस्प्ले करवाना है उसकी वैल्यू, तो आप कैसे कराओगे, राइट। सो टू डू दैट व्हाट यू हैव टू डू इज गो इनटू ये home.component.ts फाइल, इसमें से ये सिलेक्टर की जो वैल्यू है app-home, इसको कॉपी कर लेना, राइट, एंड गो इनटू app.component.html, राइट। एंड इन दिस अपन ने ये फॉर्म बनाया है, उसके पहले ही मैं एक एलिमेंट लिखता हूँ विच विल बी app-home, राइट। सो एक ओपनिंग एंड एक क्लोजिंग टैग HTML एलिमेंट जैसा हमने यूज़ किया। क्या यूज़ किया हमने, ये app-home क्या है, ये वो सिलेक्टर है उस कंपोनेंट का, वो हमने यूज़ किया, एंड आई एम सेविंग इट। सो एज सुन एज आई सेव इट, इट विल रिकम्पाइल, राइट। एंड इफ़ यू सी द कंटेंट्स ऑफ द व्यू ऑफ द कंपोनेंट, दे आर डिस्प्लेड हियर। ये होमवर्क जो है वो यहाँ लिख के आया। मतलब क्या कि ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना के उनके सिलेक्टर को आप इंटरनली यूज़ कर सकते हो। छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना के उनके सिलेक्टर्स को आप इंटरनली यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ व्हाट इट्स मीनिंग इज़, राइट। या ये तरीके से उसे आप यूज़ कर सकते हो। नाउ इफ़ आई गो एंड चेंज ये होमवर्क्स के बदले, इफ़ आई से आई एम होम कंपोनेंट, एंड इससे पहले लेट मी गिव सम h1 टैग, एंड हियर आई से होम कंपोनेंट डेमो, and I save this, right.
देन इफ़ यू सी ऑन UI, ये वापस रिकम्पाइल होगा एंड यू कैन सी कि उसका जो भी है HTML में, राइट, दैट इज विजिबल हियर। कहाँ पे? आपके app.component.html में आपने उसको यूज़ किया है, इसलिए वो विजिबल है। इफ़ आई गो इन माई app.component.html एंड इफ आई कमेंट दिस एंड आई सेव दिस, ये गायब हो जाएगा यहाँ से, ये गायब हो गया। मतलब क्या कि ये कंपोनेंट कैसे डिस्प्ले हो रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स सिलेक्टर। मैंने वापस बनाया और सेव किया तो यू कैन सी कि वो वापस यहाँ आ गया, राइट। सो दिस इज अ होम कंपोनेंट विच वी हैव जनरेटेड हियर। इज इट क्लियर? राइट। अब एक कंपोनेंट और जनरेट करते हैं, राइट। आई विल से ng जनरेट कंपोनेंट होम के बदली लेट अस से अबाउट अस। ऐसा ही मैं नाम ऐसे ही दे रहा हूँ कंपोनेंट के, आप कुछ भी दे सकते हो नाम। तो आई एम सेइंग ng जनरेट कंपोनेंट अबाउट अस। ये भी क्या करेगा? आपके ऐप फोल्डर के अंदर, राइट, इट विल क्रिएट अ फोल्डर कॉल्ड एज अबाउट अस एंड इनसाइड अबाउट अस देयर विल बी 3-4 फाइल्स। एक spec.ts छोड़ दिए तो 3 ही फाइल्स। वन इज aboutus.component.ts, aboutus.component.html एंड aboutus.component.css। ये 3 फाइल्स वो जनरेट करेगा। उसमें भी TS में क्या होगा? TS में एक @component डायरेक्टिव होगा जिसके अंदर देयर वुड बी एक सिलेक्टर, एक टेम्पलेट URL एंड एक स्टाइल URLs, राइट। फिर उसका जो भी सिलेक्टर है उस सिलेक्टर को एज एन HTML एलिमेंट अगर आपने कोई दूसरे कंपोनेंट में यूज़ किया, राइट, तो यू विल बी एबल टू व्यू इट्स कंटेंट इन दैट कंपोनेंट। यानी app.component.html में अगर हमने उसका सिलेक्टर लगा दिया, राइट, तो अपन उसे देख सकेंगे। और जो पोजीशन पे आप लगाओगे वो पोजीशन पे आप उसका कंटेंट जो है देख सकोगे। अभी हमने क्या किया था? हमने कहाँ यूज़ किया? हमने सबसे टॉप लेवल पे यूज़ किया था ऐप होम। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो फॉर्म है ना, फॉर्म और ये ng फॉर के बीच में मैं इसको डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो आई से ऐप डॉश डैट अबाउट अस, ये कंपोनेंट का ऐसा नाम बनेगा, ऐप डैश अबाउट अस सिलेक्टर का, राइट। ये बन गए 4। अब मैंने ऐप डैश अबाउट अस किया। अबाउट अस में जाके देखते हैं तो इसके HTML में यू विल सी अबाउट अस वर्क्स लिख के आ रहा है, राइट। तो क्या होगा? सबसे पहले आपको होम कंपोनेंट का कंटेंट डिस्प्ले होगा, फिर आपको एक फॉर्म डिस्प्ले होगा और फॉर्म के बाद में अबाउट अस वर्क्स लिख के आएगा और उसके बाद में ये सारी चीज़ें जो है वो होगी। नाउ लेट अस चेक। ये देखो यहाँ व्हाट वी गॉट इज अबाउट अस वर्क्स, राइट। सो यू कैन हैव n number of components and you can choose their selectors, right, and use their selectors in some HTML file and in some another component and you will be able to view its contents, right। एक चीज़ और कर सकते हो कि ये मैंने यहाँ से हटा दिया कंपोनेंट को, राइट, एंड इंस्टेड ऑफ app.component.html मैंने home.component.html में उसको उठा के डाल दिया, right। So I am using one component into another component again and if we go here you can see कि वो home component के ही content बन के वो display हो गया, right। So this is a kind of nesting मतलब कि आपका app component is the most parent most component, right। उसके अंदर में what we have used is a home component, so home component is a child of app component, right, and inside home component we have used the selector of about us component. So about us component is a child of home component, right? That is how things work. Is it clear? Sarvasri